Assalamu alaikum, grade 4th. How are you all? I hope that you all are doing very, very good and you all are safe and sound. Grade 4th, this is your English lesson, and today we'll be dealing with a new exciting unit, that is unit number 7. And believe me, it is a very, very interesting and very exciting unit. You will learn about many things and a new TV show. Okay, so take out your English books and a pencil to note down the meanings, and open your English book at page number 34. And topic for today is the Flintstones. Flintstones. Okay, say with me. Come on, pronounce with me. Flintstones. Okay, so yes, today we'll be studying about them. But first of all, what we will do, we will read it from head to toe, and after the reading we will move to the explanation. So I'm going to start the reading. You must place your fingers on the book and you have to read it with me. Let's get started. The Flintstones. The Flintstones is a cartoon program that was first shown on television about 50 years ago. It was about two families who lived in Stone Age, thousands of years ago, when most important things were made from stone. The cartoon is popular because the characters are Stone Age people with a Stone Age car and a pet dinosaur. The names of people and places in the cartoon are based on stones because, of course, they lived in Stone Age. Fred Flintstone is the main character. He lives with his wife, Wilma, and their baby girl, Pebbles. Their dinosaur's name is Dino. Fred's best friend is Barney Rubble. Barney and his wife Betty have a son called Bam Bam. The Flintstones live in a stone house in a town called Bedrock. Sometimes Fred gets excited about the things and shouts Yabba Dabba Doo. Fred and Barney travel in Fred's Stone Age car. It is made of rocks and wood and has no engine. Fred and Barney have to use their feet to move the car. The Flintstones cartoon was 50 years old in 2010, and because people liked it so much, it was decided to bring it back again. Stone Age in Ireland. The first people came to Ireland about 10,000 years ago during the Stone Age. They used tools and weapons made of stone. They hunted animals and gathered wild food. Later, Stone Age people farmed and built houses to live in. The Newgrange tomb in County Meath was built later in the Stone Age. Okay, students, so this was all about the reading, and now we will move to the explanation that what is the Flintstones. I'm going to give you a background. Flintstone is a cartoon. ये आज भी टीवी पे चलता है, एंड इट इज़ द वेरी टीवी पे आने वाले प्रोग्राम्स में से जो सबसे पहले पहले प्रोग्राम्स थे उनमें से ये एक था. ओके, और इसमें बहुत मज़े मज़े की बातें हैं. उस वक्त की बातें हैं, तकरीबन आज से 34 लाख साल पहले की बातें हैं. 3.4 millions ago. Okay, so let's get started. The Flintstone is a cartoon program. Flintstone जो है ये कार्टून का एक शो था, एक प्रोग्राम था, that was first shown on television about 50 years ago. और ये आज से 50 years ago, आज से 50 साल पहले was first shown, और ये पहली दफ़ा टीवी पर टेलीविज़न टीवी पर दिखाया गया था. shown means दिखाया गया था 50 years ago, 50 साल पहले. तकरीबन 50 साल क्या कह लो, आप कह लो 60 साल पहले, 60 years ago. ओके, दिस वॉज अबाउट टू फैमिलीज़. ये जो शो था, ये जो प्रोग्राम था, द फ्लिंटस्टन्स, इस कार्टून का नाम द फ्लिंटस्टन्स था. ठीक है, इट वॉज अबाउट टू फैमिलीज़. ये दो फैमिलीज़ के बारे में था. ठीक है,
हु लिव्ड इन स्टोन एज, जो कि पत्थर के ज़माने में रहते थे। अब स्टोन एज क्या है? स्टोन एज तकरीबन आज से 34 lakhs ईयर्स अगो, ठीक है, क्या होता था कि नहीं 2.5 मिलियन ईयर 2.5 मिलियन ईयर अगो तकरीबन ये था कि आजकल हम चीज़ें मेटल से बना रहे हैं, वुड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, बट दैट टाइम वो चीज़ें इतनी आम नहीं थी। सो व्हाट द पीपल यूज़ टू डू, पीपल यूज़ टू हैव स्टोन्स, पत्थरों से वो घर बनाते थे। उनके सारे जो औजार्स होते थे, टूल्स होते थे, वो भी पत्थरों से बनते थे। एंड ऑल दैट जो वेपन्स होते हैं एक दूसरे को मारने के लिए, जो हथियार होते हैं, वो भी पत्थरों से बनते थे। उनका बर्तन जो होता था वो भी पत्थर से बनता था। एंड एवरीथिंग वाज मेड अप ऑफ स्टोन। ओके, यू कैन सी हियर कितने सारी चीज़ें जो कि स्टोन से बनी, और वो पत्थरों के गारों में रहते थे, इसीलिए उसको स्टोन एज कहा जाता है। यानी वो ज़माना जब पत्थर आम तौर पर हर चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ओके, बाकी चीज़ें मेटल उनके पास नहीं था। स्टोन एज के बाद फिर हमारे पास ब्रोंज एज आती है। ब्रोंज एज क्या है? ब्रोंज एक मेटल है, ठीक है, ये एक धात है, लोहे की तरह का है। और जब फिर वो आया, फिर लोगों ने स्टोन्स को इस्तेमाल करना छोड़ दिया, लोगों ने ब्रोंज को, इस धात को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ओके, सो स्टोन एज बहुत ही पुरानी ज़माने की बात है, बहुत ही पुराने ज़माने की। बर्तन, खाना पीना, घर, औजार, सब कुछ पत्थर से बनता था। उस ज़माने को कहते हैं स्टोन एज। ओके, thousands of years ago, हज़ारों साल पहले, when most things were made from stone, जब बहुत सारी चीज़ें, most things, बहुत सारी चीज़ें were made, बनाई जाती थी, from stone, पत्थर से। stone means पत्थर। द कार्टून इज़ पॉपुलर, ये कार्टून बहुत ही मशहूर है, बहुत ही पॉपुलर है, बिकॉज द कैरेक्टर्स आर स्टोन एज पीपल, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं, कहानी के अंदर जो किरदार है, जो लोग हैं, वो स्टोन एज के लोग हैं, ठीक है, विद अ स्टोन एज कार, और उनके पास एक स्टोन एज की कार भी है, ठीक है, एंड अ पेट डायनासोर, और उन्होंने एक डायनासोर भी अपने साथ पाला हुआ है। राइट, बिफोर मिलियंस एंड मिलियंस ईयर अगो डायनासोर्स होते थे, एक्चुअल एनिमल था। अब डायनासोर्स नहीं होते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट मीन्स वो ख़त्म हो चुके हैं। आजकल डायनासोर नहीं मिलते, पुराने ज़माने में होते थे डायनासोर, आपके स्कूल के जितने बड़े बड़े। ओके, और दे हैड ह्यूज फीट एंड they were very scary, you can say, because they were too much big for us. सो उस टाइम डायनासोर्स भी होते थे। उन्होंने टुडे वी आर कीपिंग डॉग्स एंड कैट्स एज अ पेट, आजकल हम कुत्ते और बिल्लियों को पेट की तरह रख रहे हैं, बट एट दैट टाइम स्टोन एज पीपल यूज टू कीप डायनासोर एज अ पेट। इन दिस कार्टून, इस कार्टून में दिखाया गया है कि वो जो डायनासोर है, वो इस कार्टून में उन्होंने, वो जो लोग थे, वो जो किरदार थे, उन्होंने उसको अपना पेट रखा हुआ है। Okay, so that is why I'm telling you this is a very interesting lesson. Okay, the names of the people and places in this cartoon are based on stones. The names of people, the names of places, जगहों के नाम और लोगों के नाम in this cartoon, इस कार्टून में are based on stones, ये पत्थरों पर बेस्ड थे, ठीक है। किसी को कहो एम्प्टी स्टोन, किसी को कहो हैवी स्टोन, है ना, तो इस तरह पत्थरों से उठाए गए नाम थे वो। ओके, वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स, क्योंकि फॉर श्योर, डेफिनेटली दे लिव्ड इन स्टोन एज, क्योंकि वो स्टोन एज में रहते थे, ठीक है। टुडे इट डजेंट हैपन, हम किसी को मिस्टर प्लास्टिक नहीं कहते एंड नॉर वी कॉल समबडी मिस्टर आयरन, बट वी डू हैव आयरन मैन, है ना, आयरन मैन है ना हमारे पास। सेम लाइक दैट, ये भी अपने नाम जो थे वो स्टोन्स के बेसिस पे ही रखते थे, यू नो, शाइनिंग स्टोन, गोल्डन स्टोन, इस तरह के नाम होते थे। इजंट इट फनी? दिस इज वाई, बिकॉज दे वर लिविंग इन स्टोन एज। फ्रेड फिलिंस्टन इज द मेन कैरेक्टर। यू सी दिस मैन, दिस वन, हिज नेम इज फ्रेड फिलिंस्टन। इसका नाम क्या है? फ्रेड फिलिंस्टन। इसके नाम में भी स्टोन है, देखिए,
इज़ द मेन कैरेक्टर, ये इस कार्टून का मेन किरदार है, मेन जो शख्स है इस कार्टून में जिसके गिर्द सारी स्टोरी घूमती है, दैट इज़ फ्रेड फ्लिंस्टन इज़ द मेन कैरेक्टर। ये सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ही लिव्स विद हिज वाइफ, ही लिव्स वो रहता है, विद किसके साथ, हिज वाइफ अपनी बीवी के साथ, वो रहता है अपनी बीवी के साथ, विल्मा, और उसकी बीवी का नाम क्या है, विल्मा। हियर इज विल्मा, दिस द गर्ल इन द वाइट ड्रेस, ओके, शी इज़ विल्मा। एंड देयर बेबी गर्ल, और उनकी एक छोटी सी बच्ची है, बेबी बच्ची, छोटी सी बेबी बच्ची, बच्चा, गर्ल मीन्स क्योंकि वो लड़की थी तो उनका एक छोटा सा बेबी गर्ल भी थी जिसका नाम था Pebbles. Look at her. Right? Their dinosaur name is Dino. अभी इन्होंने अपने साथ एक डायनासोर भी पाला हुआ है और डायनासोर का नाम क्या है, डीनो। ओके। फ्रेड्स बेस्ट फ्रेंड इज बार्ने। अब ये जो फ्रेड है इसका एक बेस्ट फ्रेंड है इस कार्टून में और उसका नाम क्या है, बार्ने। दिस मैन इज बार्ने। ओके। एंड हिज वाइफ बेटी, और उसकी बार्ने रबल इसका पूरा नाम है। बार्ने रबल की एक वाइफ है बेटी, दिस द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस, एंड हैव अ सन कॉल्ड बैम बैम, और इनका एक छोटा सा बेटा भी हुआ करता था जिसका नाम क्या है, बैम बैम। दिस इज अ बैम बैम। ओके, तो ये दो फैमिलीज हो गई, वी गॉट टू फैमिलीज। द फ्लिंस्टन लिव इन अ स्टोन हाउस इन अ टाउन कॉल्ड बेडरॉक। ये जो फ्लिंस्टन्स हैं, ये जो सारे चारों के चारों कार्टून जो कि हमने अभी देखे, ये रहते हैं स्टोन हाउस में, पत्थरों के घर में। यू कैन सी दिस द सिटी ऑफ स्टोन्स। ओके। इन अ टाउन, वो एक कस्बे में रहते हैं। टाउन मीन्स छोटी सी सिटी, जैसे यू कैन से मिंगोरा वॉज बिफोर, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले मिंगोरा वॉज अ टाउन एंड नाउ इट्स अ सिटी बिकॉज इट्स टू मच बिग। तो ये एक छोटे से कस्बे में रहते थे, एक टाउन में रहते थे जिसको क्या कहते हैं, बेडरॉक। ओके, इस कस्बे का नाम बेडरॉक था। समटाइम्स, कभी कभी, फ्रेड गेट्स एक्साइटेड अबाउट थिंग्स। फ्रेड जो था वो चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है। एक्साइटेड मीन्स कुछ ज़्यादा ही खुश होना। अबाउट थिंग्स एंड शाउट, और वो चिल्लाता है, वो ज़ोर ज़ोर से कहता है, या बड़ा बड़ू, या बड़ा बड़ू, है ना। when we are happy what do we say, ये मज़ा आ गया and things like that, but when he was happy he used to say या बड़ा बड़ू। okay. फ्रेड एंड बार्ने ट्रैवल इन फ्रेड्स स्टोन एज कार। अभी ये जो फ्रेड है इसकी एक कार है स्टोन एज की, उस ज़माने की कार थी, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे कार एग्जिस्ट नहीं करते थे उस टाइम, अच्छा, बट इट इज़ फॉर कार्टून से, कार्टून के लिए वो बनाते हैं। तो उनकी कार है। फ्रेड और बार्ने जो है, बार्ने रबल और फ्रेड फ्लिंस्टन जो है, ये दोनों ट्रैवल करते हैं, ये दोनों सफ़र करते हैं इन फ्रेड स्टोन एज कार, फ्रेड की एक स्टोन एज कार में, ठीक है। ये उसकी स्टोन एज कार है, ये लकड़ी से और पत्थर से बनी हुई है। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स, ये पत्थरों से बनी हुई है। रॉक्स मीन्स पत्थर, मेड मीन्स बनाई गई, एंड वुड, और ये लकड़ी से बनाई गई है। वुड मीन्स लकड़ी। एंड हैज़ नो इंजन, और उसका कोई इंजन नहीं होता था। अब इंजन के बगैर भला गाड़ी चलती है, नहीं चलती, लेकिन देखते हैं इन्होंने कैसे चलाई थी। फ्रेड एंड बार्ने हैव टू यूज़ देयर फीट टू मूव द कार। अभी फ्रेड और बार्ने जो है ये अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे कि कार को ये चला सके। इंजन नहीं होता था, इंजन की जगह पैरों को इस्तेमाल किया जाता था। ओके, जस्ट लाइक व्हेन यू ट्रैवल ऑन अ हॉर्स यू यूज़ योर हैंड्स। जब आप घोड़े पे सफ़र करते हैं तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। सेम हियर, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ स्टोन एज कार, तो आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, अपने पैरों का। मूव द कार, गाड़ी को चलाने के लिए। फीट मीन्स पैर, पैरों की जमा है ये फीट, राइट। द फ्लिंस्टन्स कार्टून वॉज 50 years old in 2010। 2010 में ये जो फ्लिंस्टन्स का कार्टून है ये 50 साल का हो गया था, एंड टुडे इट इज़ 60 years old। ओके, बिकॉज क्योंकि पीपल लाइक्ड इट सो मच, लोग इसको बहुत पसंद करते थे इस कार्टून को। लाइक मीन्स पसंद करना। इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड हुआ
उन्होंने ये एक फैसला किया, डिसाइडेड मीन्स फैसला करना, टू ब्रिंग इट बैक, कि वो इसे वापस दोबारा टीवी पे चलाएंगे, अगेन दोबारा, ब्रिंग इट बैक, वापस लेके आना। तो उन्होंने ये कार्टून जो था बहुत ही ज़्यादा हिट था और बहुत ही मज़े का था, इसीलिए लोगों ने डिसाइड किया कि इसको चलाना है दोबारा से टीवी पे। ओके, जस्ट लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी व्हेन आई वाज सो स्मॉल लाइक यू ऑल, टॉम एंड जेरी तो मुझसे भी पुराना कार्टून है। ओके, इट वाज एयर्ड इन 1990s में ये चलता था, एंड टुडे इफ़ यू वांट टू वॉच इट, आज भी टीवी पर आता है टॉम एंड जेरी। सो द फ्लिंटस्टोन्स इज सेम। अच्छा, अगर आपने फ्लिंटस्टोन्स नहीं देखा टीवी पे, इट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज आपकी बुक जो है, अगेन इट्स एन आयरिश बुक, यूके आयरलैंड की बुक है ये, और ये वहाँ पे ये कार्टून बहुत चलता है। यहाँ पे जैसे टॉम एंड जेरी चलता है, आपका वो जो मोटू पतलू है, लोकल कार्टून्स आपके चलते हैं, वहाँ पे इनका लोकल कार्टून जो है वो फ्लिंटस्टोन्स है, और वहाँ पे बहुत चलता है ये। ओके, मे बी यू हैव सीन इट ऑन टीवी, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने जस्ट इनके ये पिक्चर्स वगैरह देखे हैं हर जगह, बट आई नेवर वॉच्ड इट। तो आई विश कि अगर आप लोग होते, टुडे वी विल बी वॉचिंग कार्टून, हम कार्टून देख रहे होते एक साथ, है ना, सब मिल के। इंशाल्लाह 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 वी होप कि स्कूल खुल जाते हैं, तो इन आवर फ्री टाइम, हम अपने फ्री टाइम में फ्लिंटस्टोन्स कार्टून ज़रूर देखेंगे। ओके, एंड एज इट इज़ इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में है, तो आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी उससे, राइट। ओके, द स्टोन एज इन आयरलैंड। आयरलैंड में स्टोन एज के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, अभी वो हम पढ़ेंगे। आयरलैंड एक कंट्री का नाम है जो कि यूरोप में है, ठीक है, छोटी सी कंट्री है। अब उसमें स्टोन एज कब आया, कैसे आया, उसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट पीपल केम टू आयरलैंड अबाउट 10,000 ईयर्स अगो ड्यूरिंग द स्टोन एज। स्टोन एज जब चल रहा था, पथरीला ज़माना जब चल रहा था, तो तकरीबन 10,000 साल पहले आयरलैंड में लोग आए थे। जब स्टोन एज था तब आयरलैंड खाली था। टुडे आयरलैंड इज एम्प्टी एज वेल, आज भी आयरलैंड खाली है। ओके, नॉट दैट मच खाली, बट देयर आर वेरी लेस पीपल इन आयरलैंड। जितना शायद पूरे सवात में उतना पूरा आयरलैंड में लोग हैं। देर आर वेरी लेस पीपल देयर। ओके, तो जो सबसे पहले लोग थे जो कि आयरलैंड आए थे आज से 10,000 साल पहले, स्टोन एज के दौरान। ओके, दे यूज्ड टूल्स, वो इस्तेमाल करते थे औजार, एंड वेपन्स, और हथियार, मेड ऑफ स्टोन्स, पत्थर से बने हुए। वो ऐसे औजार इस्तेमाल करते थे और ऐसे वो वेपन्स, हथियार इस्तेमाल करते जो कि पत्थर से बने होते थे। सी, यू कैन सी हियर, ऑल ऑफ दीज आर वेपन्स, दीज आर मेड अप ऑफ स्टोन्स, एंड औजार भी बनाए जाते हैं जैसे कि हथौड़ा। नाउ लुक एट दिस मैन इज़ यूजिंग टूल्स, and these tools are made up of stones. Okay, okay, they used tools and weapons made of stones. They hunted animals, वो एनिमल्स का शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। हंटेड मीन शिकार करना, एनिमल्स मीन जानवर। एंड गैदर्ड वाइल्ड फूड, और वो इकट्ठा करते थे। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा करना, वाइल्ड फूड जंगली खाना। नाउ व्हाट इज़ वाइल्ड फूड? वाइल्ड फूड इज़ दैट व्हेन यू हंट एन एनिमल और आप उसका गोश्त खाएं, किसी हाथी को मार दिया, शेर को मार दिया, सबका गोश्त। सो ऑल दैट थिंग्स इज़ कॉल्ड वाइल्ड फूड, और वो वाइल्ड फूड खाते थे जस्ट बिकॉज उनके पास उस टाइम खेत नहीं थे, दे डोंट हैव फ्रूट्स, दे डिडंट हैव सम वेजिटेबल्स, इसीलिए वो एनिमल्स को ही खा लेते थे, गोश्त खाते थे वो लोग हर एक चीज़ का। लेटर, बाद में, अब स्टोन एज जो है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ओके, स्टोन एज का एक पहला वाला हिस्सा था जिसमें स्टोन को अर्लियर यूज़ होता था, फिर एक मिडल था और फिर एक लास्ट था। ठीक है, स्टोन एज के 3 हिस्से हैं। लेटर स्टोन एज पीपल फार्म्ड एंड बिल्ड होम्स टू लिव इन। पहले वाले स्टोन एज के लोग थे वो गारों में रहते थे, पत्थरों की, पहाड़ों की गारों में रहते थे। बट लेटर, बाद में जो स्टोन एज थी उसमें लोग एडवांस हो गए, सो पीपल फार्म्ड, वो खेती बाड़ी करने लगे। फार्म मीन्स खेती बाड़ी करना। एंड बिल्ट होम्स, और वो घर बनाने लगे, टू लिव इन, जिसमें वो रह सकते थे। बिफोर दैट देर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ होम्स। ओके, घरों का, बिल्डिंग्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। सबसे पहली चीज़ें पत्थरों की बनी है। आप इजिप्शियन पिरामिड्स देख लो। ओके,
द न्यू रेंज टॉम एंड काउंटी, ये जो को है ये काउंटी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जैसे हम कहते हैं कि जब हम खेला इस्तेमाल करते हैं इन पश्तो, जब यहाँ पे छोटे छोटे कस्बे होते हैं हम उसको कहते हैं कोई, जब हम कोट इस्तेमाल करते हैं, बड़ी कोट, स्का कोट एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो अपने लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि काउंटी, काउंटी मीट, काउंटी दैट, काउंटी दिस, ओके। तो जिस तरह हम अपनी जगहों के नाम के साथ कोट इस्तेमाल करते हैं, या खेला, ख्वाजा खेला, बट खेला, एंड वी यूज़ बरी कोट और स्का कोट, इस तरह की चीज़ें। तो ये लोग जो है, ये लोग अपनी जगहों के नाम के साथ काउंटीज़ लगाते हैं, काउंटी मेथ, ठीक है। अभी एक जगह का नाम है न्यू रेंज, इस जगह का नाम है टॉम, ये एक मकबरा है। टॉम मीन्स मकबरा, न्यू रेंज ये एक मकबरा है इन काउंटी मेथ। काउंटी जो है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। मेथ वॉज बिल्ट लेटर इन द स्टोन एज, वो भी स्टोन एज के आखिरी वाले हिस्से में बना था। नाउ लुक एट दिस, ये जो आप डोम शेप की बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज़ न्यू रेंज, ओके। और ये एक मकबरा है, ये अंदर से पत्थरों से बना हुआ है, एंड द स्टोन्स इनसाइड इट हैव डिज़ाइंस, इसके ऊपर डिज़ाइंस हैं, एंड यहाँ पे बहुत मज़े मज़े की चीज़ें मिली हैं। ये जगह जो है ये आयरलैंड में है, ठीक है, आयरलैंड की काउंटी मेथ नामी एक जगह में है, एंड दिस इज़ अ वेरी ह्यूज बिल्डिंग। और ये इजिप्शियन पिरामिड्स देखे होंगे ना आपने कभी इंटरनेट पे, टीवी पे, ये उससे भी ज़्यादा पुराने हैं, ये स्टोन एज की ज़माने की बातें हैं। और इसमें तकरीबन 2 लाख टन्स स्टोन इस्तेमाल किया गया है, ओके। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। सो येस, ग्रेड 4 दिस वाज इट। आई होप यू एंजॉयड, बहुत ही मज़े का था ये लेसन। कमिंग टू योर वर्ड मीनिंग्स, प्रोग्राम, अ शो ऑन टीवी। प्रोग्राम, बेसिकली प्रोग्राम की तो बहुत सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे इस यूनिट में हम इसका मीनिंग लेंगे कि टीवी पर चलने वाला कोई प्रोग्राम या रेडियो पे चलने वाला कोई जो शोज़ होते हैं। शोन, शो का मतलब है ये दिखाना, पास्ट फॉर्म है ये शोन जो है, और इसका मतलब है दिखाना। पॉपुलर, फेमस, मशहूर, कैरेक्टर्स, पर्सन इन स्टोरी, फिल्म्स एक्सेट्रा प्लेइंग रोल्स, वो लोग जो किसी स्टोरी में हो, जो किसी फिल्म्स में हो और वो डिफरेंट किरदार अदा कर रहे हैं, उनको कैरेक्टर्स कहा जाता है। पेट, एनिमल लिविंग विद ह्यूमंस, वो वाले जानवर जिनको डोमेस्टिकेट किया जाता है, जिनको इंसान को अपने साथ पालते हैं, ओके। ऑफ कोर्स, ये इफ़ कोर्स नहीं है, आई एम सो सॉरी, ये ऑफ कोर्स है, OF ऑफ कोर्स, ठीक है, जिसका मतलब है डेफिनेटली, फॉर श्योर, यानी पक्का, जाहिर है, ओके। डायनासोर, एंशियंट एज एनिमल, पुराने ज़माने का ये एक जानवर था डायनासोर। इट वाज वेरी ह्यूज एनिमल एंड दे यूज्ड टू ईट स्टोन्स, वो पत्थर खाते थे, एंड दे वर वेरी स्कैरी, ओके। एक्साइटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुश होना। शाउट्स मीन सेइंग समथिंग विद अ लाउड वॉइस, जब आप कोई भी चीज़ कहने के लिए जब आप चिल्लाते हैं उसको शाउटिंग कहते हैं। सिमिलर लाइक वी यूज टू से दैट डोंट शाउट, डोंट मेक अ नॉइस। फीट, प्लूरल ऑफ फुट, पैरों की, पैर को जमा करें तो उसको हम पैरों कहते हैं इन उर्दू, एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट फीट। डिसाइडेड, सिलेक्टेड, ये एक चीज़ को वो करना। आई जस्ट टोल्ड यू द वर्ड इन उर्दू बट नाउ राइट नाउ आई एम फॉरगेटिंग इट। डिसाइडेड मीन्स आई फॉरगॉट इट, चूज़ करना, I forgot it, I'm sorry. Bring, take, लेके जाना. So grade 4, that's it. Hope you enjoyed. And till the next one lesson, take care of yourself, take care of your family. Please don't go out, and make sure you wash your hands and stay safe. Allah Hafiz, grade 4.